So hello everyone, welcome back to the channel Chemistry is Life. In today's lecture we are going to learn the nomenclature of aromatic compounds. इसके पहले टोटल 11 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं जो कि nomenclature ऑफ ईच एंड एवरी कंपाउंड जो है, जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग वीडियो पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया है और वो यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है. जिन लोगों ने अभी तक वो बेसिक वाले वीडियो पार्ट से लेकर तो कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप का एक एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके जो डाला है नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. और वो पार्ट देखने के बाद ये वाला पार्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, सो वो पार्ट्स पहले देखिए एंड फिर देन कंटिन्यू द नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. So listen carefully now. The aromatic compounds. Before going to learn the nomenclature of aromatic compounds, first we will revise some part from where the aromatic compounds are origin. Okay, in simple, what we know the hydrocarbons, right? In the first video lecture, we have studied what is the meaning of hydrocarbons and how they are classified. In that point, I have told you these hydrocarbons are of mainly two types. One is open chain, right? And another one is closed chain, right? For this open chain we have studied all this type and its classification. Now we are going towards the closed chain compounds. Now these closed chain compounds are of mainly again two types. One is homocyclic, one part is homocyclic, another one is heterocyclic. One is homocyclic, another one is heterocyclic. Now the meaning of this word self by itself, homo means similar. Homo means similar. Cyclic means cyclic structure. It is a closed structure. That closed structure is called as cyclic structure also. Now homocyclic means there is a presence of similar atoms. What? In a cyclic chain there is a presence of only similar atom, means only one type of atom is present. Now in the heterocyclic, hetero means different. In the cyclic chain the atoms are different, atoms are used. In homocyclic, similar atom. In heterocyclic compounds, if the compound is like this, if we take examples of this type of compounds, it is a furan. What is the name of this compound? This is furan. Now how many elements are here? How many atoms are here? Here are 4 carbon atoms, right? 1, 2, 3, 4. There are 4 carbon atoms, but there is a 1 oxygen atom. So it is a heterocyclic, means 2 different types of atoms, 1 carbon 1 oxygen, अलग अलग atom हो गए, उसको बोलेंगे heterocyclic compounds. And if there is a homocyclic, suppose अभी homocyclic में भी और 2 टाइप के आते हैं. One is aromatic and another one is alicyclic. Now here today we are going to learn about this type of compounds and its nomenclature. Aromatic कहाँ से आया? Aromatic comes from the homocyclic compounds, means in which the similar atoms are present. Okay, heterocyclic compounds में भी aromatic, ये भी aromatic हो सकते हैं ना. heterocyclic है मतलब सिर्फ अलग अलग atoms है, बट अगर ये भी aromaticity के लिए rules follow कर रहे हैं तो ये भी क्या हो सकते हैं? aromatic हो सकते हैं. Now with these aromatic compounds are again are of two types. One is benzenoid, one compound is benzenoid, another one is non-benzenoid, the another one is non-benzenoid. This is alicyclic, means these compounds are not aromatic, okay, and these are benzenoids and non-benzenoid. Now here the one word is there, benzene. Benzene means simply C6H6 compound. This is n-hexane. CCH14 वाला n-hexane है ना, CCH12 वाला तो फिर दूसरा है. और ये जो कार्बन है, and this benzene ring has, every carbon has 1 hydrogen atom. क्या है इनके पास? Every carbon has 1 hydrogen atom, because we know the carbon always form how many bonds? Carbon always form 4 bonds. देखो यहाँ पे चेक करो, ये वाला कार्बन है 1 bond, 2, 3 and this double bond. Total 4 bonds are completed. Right, in this way every carbon atom forms 4 bonds, 1, 2, 3, 4. So the formula of benzene is C6H6. ये इस तरह से बेंजीन है. अगर ये स्ट्रक्चर को छोड़ के और कोई भी कंपाउंड होगा उसको बोलने का नॉन बेंजोनाइड. सपोज द कंपाउंड इज लाइक दिस. ये है cyclopentadiene anion. Name of the compound is
साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो, पेंटा 5 कार्बन है इसलिए पेंटा, डाई, डाई क्यों, 2 डबल बॉन्ड है, डाई इन ENE, साइक्लो पेंटा डाइन, नेगेटिव चार्ज है इसलिए एनायन बोले, साइक्लो पेंटा डाइन एनायन, ओके, इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, सो इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ आएगा, वापस रिंग के अंदर शेयर हो जाएगा, ओके, इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज एरोमेटिक, मगर ये 6 कार्बन छोड़ के रिंग है इसलिए क्या बोले इसको, नॉन बेंजेनोइड, अगर ये टाइप में होगा तो बेंजेनोइड, इस बेंजीन इज एग्जांपल ऑफ बेंजेनोइड कंपाउंड। और इस तरह से और क्या होंगे, सपोज 2 बेंजीन रिंग्स आर देयर, ये एक बेंजीन रिंग और उसको अटैच दूसरी बेंजीन रिंग आ गई, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नैफ्थैलिन, वी नो नैफ्थैलिन बॉल है ना, डाबर गोली बोलते हैं उसको, दिस इज अ नैफ्थैलिन, structure of naphthalene is like this, okay, when 2 benzene rings are connected to each other, that structure is called as naphthalene. These are the benzenoid compounds, means benzene ring. Now before going to benzenoid and non benzenoid, I will tell you what is the criteria to decide the aromatic compounds and non aromatic compounds, है ना, अगर कोई structure aromatic है, suppose ये वाला benzene ही ले लो, this is benzene, this benzene is an aromatic compound, but why, how will you decide any compound which is aromatic and non aromatic, तो उसके लिए 4 रूल्स हैं, क्या, सबसे पहला तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, इज इट साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लिक है, सेकंड रूल है इट शुड हैव प्लेनार स्ट्रक्चर, एक प्लेन में होने चाहिए सब एटम्स, देन इट शुड हैव कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, क्या होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, अगर इस तरह से है तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एंड द फोर्थ रूल सेज इट शुड ओबे हुकेल रूल, क्या फॉलो करना चाहिए, हुकेल रूल, व्हाट इज हुकेल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स किसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स का काउंट जो है 2, 6, 10, 14, 18 कंटिन्यू, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स रिंग पे गए तो एरोमेटिक है, 6 है तो एरोमेटिक है, 10 है तो एरोमेटिक है, 14 है तो एरोमेटिक है, सिंपली इस तरह से अगर होंगे तो एरोमेटिक है। अब ये बेंजीन है, बेंजीन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 और ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाले एरोमेटिक होते हैं बोला था, सो बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड है ना। सपोज नैफ्थैलिन इज देयर, नैफ्थैलिन में कितने हैं, 7, 8, 9, 10, 10 वाला है मतलब क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है ना। सपोज द कंपाउंड इज लाइक दिस, ये एरोमेटिक है क्या, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं टोटल, कितने हो रहे हैं, 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 अपने रूल में है क्या, नहीं है, तो एरोमेटिक नहीं है। अगर ये फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन्स का टोटल काउंट आ रहा है तो एरोमेटिक है, ओके, क्योंकि ये रूल फॉलो करते हैं ये लोग, 4n+2, यार n मीन्स नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, n मतलब टोटल नंबर ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन्स ले ले अपन, रिंग ले ले तो 4 × 1+2 6, पहला नंबर क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि बेंजीन की रिंग एक है, सो 4n+2 टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स ले लो, 4 × बेंजीन के लिए एक ही रिंग रहती, तो 1+2, 4 × 1+2 कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आगे 6। सपोज नेफ्थैलिन है, नेफ्थैलिन की रिंग कितने हैं, 2 रिंग आते हैं, 4 × 2+2, 4 2 ज़ा 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आगे क्या 6 और 2 8, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से एक कैलकुलेशन करके निकाले वाली वैल्यू है 2, 6, 10, 14, 18, उसके बाद क्या आएगा 22, 26, 30, 34, 38, 42, इस तरह से। अगर इतने इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट है तो वो क्या है, एरोमेटिक है, और इसके मैच में नहीं आ रहा है तो इट इज़ अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर, सो दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले फैमिली मेंबर है बेंजीन, राइट, द फर्स्ट मेंबर इज बेंजीन। तो बेंजीन के बारे में स्टडी करेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे अब। सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर निकालूंगा यहाँ पे मैं। बेंजीन हैज हाउ मेनी कार्बन्स, टोटल
6 नंबर्स ऑफ कार्बन है इस तरह से, राइट, एंड एवरी कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन एंड इट हैव अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये है बेंजीन। इसी को हम कैसा निकालते हैं? इन शॉर्ट वी ड्रॉ इट जस्ट लाइक दिस। सिर्फ अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, कहीं भी आन दो। अगर यहाँ से शुरू करें तो फिर अल्टरनेट आना चाहिए वो। दिस इज अ बेंजीन। स्ट्रक्चर बेंजीन का है। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज बेंजीन। चलो नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे फिर। सपोज ये बेंजीन को मैंने क्या अटैच किया सबसे पहले। अभी बेंजीन के डबल बॉन्ड्स इस तरह से 3 बार निकालने से बेहतर डायरेक्ट अपन इस तरह से स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। इस सर्कल का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या हो रही हैं? डीलोकलाइज हो रही। क्या हो रही? यानी कि इस तरह से ये बेंजीन है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पे आएगा, ये अगर यहाँ आया तो यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ पे। अभी भी बेंजीन ही है वो। इट इज़ अगेन लाइक अ बेंजीन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, है ना। अगर इसमें और इलेक्ट्रॉन वैसे हो गए वापस से, तो शिफ्टिंग अगर हो गई तो क्या बनेगा? और डबल बॉन्ड वापस यहाँ आया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, और ये डबल बॉन्ड ऊपर गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है क्या? ओके, दिस आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, है ना। इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए तो वापस वो आने वाला है बाद में, तो उसको डायरेक्टली अपन क्या निकालने का? इस तरह से सर्कल या फिर इस तरह से डॉट भी निकालते हैं उसको, है ना। इसको मीनिंग होता है रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है वहाँ पे, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो ऐसे निकालो या फिर डायरेक्ट बेंजीन को इस तरह से निकालो, ठीक है। सपोज इसको मैंने क्या अटैच किया? अब 1 क्लोरीन अटैच किया। नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1 क्लोरीन इज अटैच टू दिस बेंजीन रिंग। क्या बोलेंगे? क्लोरो बेंजीन। सिंपल। जो अटैच सब्स्टिट्यूएंट है उसको ले लो इस तरह से, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, है ना। सपोज रिंग है, रिंग को एक ब्रोमीन अटैच है तो क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन, लाइक दिस। ओके, सपोज इफ देर आर chlorine, bromine, both are there, then what will you do? 2 ब्रोमो और 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो, क्या बनेगा? नंबरिंग कहाँ से देंगे? 2 हेलोजन है, हेलोजन की शिफ्टिंग कैसी है? एक तो ब्रोमो क्लोरो, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? तो ब्रोमो को पेरेंट कार्बन पकड़ो, यानी कि ब्रोमो वाले कार्बन को 1 नंबर जाएगा, इसको कितना गया फिर? 2 गया, है ना। तो नाम क्या बनेगा? 2 क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, 2 क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। और इसको और एक तरह से लिखने की मेथड है ना। इफ ऑन अ बेंजीन रिंग, अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, अगर ये एक ग्रुप X अटैच है, ये एक ग्रुप X अटैच है सपोज, है ना। पोजीशन कौन सी होगी इनकी? 1-2 होगी। क्या होगी? 1-2। इफ देयर इज अ 1-2 पोजीशन अटैच सब्स्टिट्यूएंट, अगर 1-2 यानी कि एडजेसेंट पोजीशन पे 2 ग्रुप अटैच है, सिंपली वहाँ पे तुम उसको क्या लिख सकते हैं? अर्थो वाला वर्ड यूज कर सकते हैं शॉर्ट में। क्या? अर्थो। अगर पोजीशन उनकी क्या है? 1-3 है, एक पोजीशन इज ये 1 और ये 3, देन यू कैन यूज मेटा, स्मॉल एम, ये सब इनिशियल्स ही लगाने के, ठीक है। और अगर ग्रुप है 1-4, यानी कि एक यहाँ अटैच है, एक यहाँ अटैच है, इसको बोलने का प्यारा, स्मॉल पी। सिंपल। 1-2 अर्थो, 1-3 मेटा, 1-4 प्यारा। यहाँ पे क्या बोलेंगे फिर? 1-2 क्या 1-3? 1-2 है तो क्या लगाएंगे? ऑर्थो। सिंपली क्या लिखने का? ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पे कौन है? तो अर्थो क्लोरो, आगे सेम ब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो का मीनिंग समझ में आया? इफ 2 ग्रुप्स आर एट 1-2 पोजीशंस दैट आर कॉल्ड एज अर्थो, करेक्ट। Now, what will the name of this compound? Here, one is chlorine, one is iodine. Do the numbering. Para, iodo, chloro, benzene. Simple है. Okay. After that,
The next compound is suppose like this, CH3. Now what will be the name of this compound? Simple, methyl benzene. Methyl benzene. Suppose C2H5 is there. अब क्या बोलेंगे? इथाइल बेंजीन. सिंपल है, करेक्ट. इफ देर आर टू CH3 ग्रुप्स अटैच एट द अर्थ पोजिशन, देन कोई भी एक कॉमन नंबर दो, 1 इसको 2, दो नंबर को लिखो 2 मिथाइल, आखिर में मिथाइल बेंजीन. 2 मिथाइल मिथाइल बेंजीन. या फिर इसको इस तरह से लिख सकते तुम 1 2, और एक मेथड क्या है 1 2 डायरेक्ट क्या लिखेंगे डाई मिथाइल, और आखिर में बेंजीन, क्योंकि दोनों ग्रुप सिमिलर है. 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन. और अब 1 2 पोजिशन है, इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको अर्थो. अर्थो डाइमिथाइल बेंजीन. दो रहने से क्या लगाने का डाई लगा देने का, अर्थो डाइमिथाइल बेंजीन. इज इट क्लियर? ओके. इफ दिस 2 मिथाइल ग्रुप्स आर एट मेटा पोजिशन पे अगर है सपोज, तो क्या करेंगे आप? अब पोजिशन क्या हो गई 1 2 3 हो गई. आप क्या बोलेंगे 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, और यहाँ पे क्या लगाएंगे मेटा डाइमिथाइल बेंजीन. क्लियर? इफ दिस सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच एट द पैरा पोजिशन, अगर पैरा पे आ गए तो क्या बोलेंगे? अब क्या हो गया 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन एंड नाउ हियर पैरा. 1 4 मीन्स पैरा डाइमिथाइल बेंजीन. करेक्ट. इफ टू ग्रुप्स दिस मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द अर्थ पोजिशन, तो इसको बोलने का अर्थोजाइलिन. XYLENE अर्थोजाइलिन. ये वाला है मेटाजाइलिन एंड दिस इज पैराजाइलिन. अर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन, इस तरह से. So this is when the methyl group or any alkyl group is attached to the benzene ring. After that, if suppose OH group is attached to the benzene ring, तो क्या होगा? Phenol. Okay. When this OH group is attached to the benzene ring, it is called as phenols. Right? Phenol बन गया अब ये. If two OH group are attached to 1 2 position, तो क्या बोलेंगे? एक है तो कोई भी एक फिनॉल है, नंबरिंग दो 1 2, ये दूसरा वाला क्या बन गया फिर एज अ सब्स्टिट्यूएंट बन गया 2 हाइड्रोक्सी, आखिर में फिनॉल. सिंपली 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, या फिर अर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल. Right, these are 2 hydroxyphenol or ortho hydroxyphenol. And when the 2 OH group are attached at the 1 2 position, so it is called as, when the OH group are both attached to the ortho position, इसको बोलेंगे कैटेचॉल. कॉमन नेम क्या है? कैटेचॉल. सिंपल. 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल, अर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल, या फिर कैटेचॉल. एंड इफ देयर आर 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन, तो क्या बोलेंगे? एपीसी नेम पहले क्या होगा? अगर ये 2 था तो ये क्या हो गया? आप 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल, या फिर मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल, या फिर कॉमन नेम रेजोरसिनॉल. कॉमन नेम क्या है? रेजोरसिनॉल. ये कैटेचॉल, ये रेजोरसिनॉल. करेक्ट. एंड इफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट द पैरा पोजिशन, तो इसका नाम बनता है हाइड्रोक्विनोन. हाइड्रोक्विनॉल.
रेजोर्सिनॉल, कैटेचॉल और हाइड्रोकिनॉल। सिंपल। आईपीसी नेम क्या होगा? पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल, 4 हाइड्रोक्सीफिनॉल, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज व्हेन दिस OH ग्रुप इज अटैच। अच्छा, अब अगर ऐसा है, एक OH ग्रुप है और एक क्लोरीन अटैच हुआ, तो क्या बोलेंगे? दिस इज द नेम ऑफ दिस, करेक्ट है, 2 क्लोरोफिनॉल, करेक्ट। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, 2 ब्रोमोफिनॉल, राइट। इफ अगर यहाँ पे अटैच है, अगर ये वाला अटैच है, तो क्या बोलेंगे? CH3 अटैच हो गया तो नंबरिंग, अर्थोमेटा प्यारा, प्यारा मिथाइल फिनॉल, पैरा मिथाइल फिनॉल, और इसको और एक नाम है पैरा क्रेसॉल, ये है क्रेसॉल, दिस इज कॉल्ड एज पैरा क्रिसॉल। 1 OH ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप, और ये अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है अर्थ पोजिशन पे, तो इसको बोलते हैं अर्थोक्रेसॉल, या फिर 2 मिथाइल पैरेंट फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, राइट, या फिर अर्थोक्रेसॉल। और वो अगर मिथाइल ग्रुप अगर मेटा पोजिशन पे आया तो मेटाक्रेसॉल, राइट, अर्थोक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल एंड मेटाक्रेसॉल। तो ये तो हो गया जब अगर OH ग्रुप अटैच है अपने बेंजीन रिंग के ऊपर, राइट। आई एम टेकिंग 1 by 1 फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। अगर इसके बाद सपोज अटैच है अल्डिहाइड, अगर अटैच है तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड OH इफ देयर इज एन अल्डिहाइड, सिंपली बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड जैसा फिनॉल था वैसे बेंजीन रिंग को अगर अल्डिहाइड अटैच हुआ तो क्या बोलने का? बेंजाल्डिहाइड, है ना। अगर यहाँ पे 1 मिथाइल लग गया तो क्या बोलेंगे? 1 2 3, क्या बोलेंगे? 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, राइट। इस तरह से समझ में आ गया? ओके। एंड इफ देयर इज 1 OH ग्रुप प्रेजेंट एट द बेंजीन रिंग, उसके अर्थ पोजिशन पे है, 1 और 2 नंबर पे है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर देखनी पड़ेंगे, आप किसको नंबर कम से कम देने का है। तो अपने को मालूम है अल्डिहाइड उसके ऊपर है, अल्कोहल के भी ऊपर, तो ये वाले कार्बन को कम से कम नंबर जाना चाहिए 1 and 2, तो क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी, आगे बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, या फिर इसको कॉमन नेम है सैलिसाल्डिहाइड, क्या है? सैलिसाल्डिहाइड, या फिर अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। कॉमन नेम क्या है? सैलिसाल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप की जगह पे अगर इस रिंग को COOOH ग्रुप अटैच है, इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड, है ना। और ये बेंजोइक एसिड को अगर एक OH ग्रुप अटैच हो गया तो सिंपली इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। ये क्या था? सैलिसाल्डिहाइड, ये सैलिसिलिक एसिड। आईपीसी नेम क्या होगा? 1 नंबर इसको जाएंगे ऑब्वियसली एसिड को, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड। ना अगर एक बेंजीन रिंग को अगर 2 COOH ग्रुप अटैच होंगे तो इसका कॉमन नेम क्या है? पहले वो बोलता थैलिक एसिड। क्या है इसका कॉमन नेम? थैलिक एसिड, राइट, इन दिस वे। तो ये इस तरह से क्या है, इनके नॉमेनक्लेचर है। आफ्टर द एसिड्स, okay, in maximum portion we have completed. One last example, suppose the compound is like this. Now what will you do? Simply NO2 means nitro, nitro, the structure is benzene, nitro benzene, simple, nitrobenzene. If the structure is सपोज ये ऐसा है तो क्या बोलेंगे? NH2 ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग को, तो कॉमन नेम क्या बोले थे इसका? याद है? एनिलीन। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे दिस वाज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके अंदर अपन ने बेंजीन रिंग, उसके अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप अटैच होने के बाद क्या नाम बनेंगे वो सब अपन ने देख लिया है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट्स एंड यू ऑल आर गेटिंग योर प्रॉपर नोट्स। जिन लोगों को समझ में आया है या फिर कोई प्रॉब्लम है
तो वो भी जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं. ओके, इफ़ इट इज़ अंडरस्टूड देन comment as a yes understood sir. So in this way these are all about the nomenclature of organic compounds, different functional groups and different organic compounds का nomenclature अपन ने पूरा कवर कर लिया है. So see you in the next lecture with the next topic. Thanks for watching this video. Keep watching, keep learning.